Welcome all, this is Shruti Shendre and today I am going to start with NCERT class 7 chapter number 1 history, and the name of our chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years, and here we are going to read about the 1,000 years from 700 to 1750 CE, that is the period of medieval India. Dear students, history is a very interesting subject which help us to understand our cultural roots, and it also help us to be a better citizen. It make us to differentiate between the past events and not to repeat the mistakes that we have committed earlier, and to be a better citizen. Whenever we are talking about history, we are always considering two periods, that is BC and AD. BC means before Christ, means before the birth of Lord Jesus, and AD means Anno Domini, means the period in which Lord Jesus has taken birth. When we talk about Indian history, it was always based on rulers and the kings, people and their living conditions, and social background, means the norms and customs and the beliefs that the people of India are following in past. So let us start our class. Before we move on for class 7th history, let me just recall you a few things about class 6th. In class 6 we have learnt about the ancient history, that is the ancient India, and here in class 7th we are going to learn about medieval India, means it is also called as the period of transition from ancient to medieval India, and here we are going to learn about the history of 1,000 years of medieval period from 700 to 1750 CE. And the key features of this period were the art of map making was developed, then history, we can see that there were various sources of writing the history, the various literacy sources that were taken under consideration to write the history. Then we are going to learn about social and economical changes that has been taken place during this transition period, and we are also going to learn about the geographical and regional changes that were also there. As we have discussed about the very first point, that is art of map making. यहाँ पर एक मैप दिया गया है पहले ही पेज पर, जो कि अल इदरीसी नाम के एक जोग्राफर ने बनाया है, और यहाँ पर एक दूसरे मैप की भी बात करी गई है जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है। जो पहला मैप है वो 1554 CE यानी कि 1154 CE में बनाया गया है, और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया है वो उसके ठीक 600 साल बाद यानी कि 1720वीं सदी में बनाया गया। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको मैंने दोनों मैप के थ्रू ये दिखाना चाहा है कि ये जो दोनों ही मैप है वो एंटायरली एक दूसरे से अपोजिट है। जहाँ पर कि पहले वाला मैप जो है लेफ़्ट हैंड साइड का वो अल इदरीसी नाम के कार्टोग्राफर ने दिया है, और जो सेकंड मैप है जो कि राइट हैंड साइड में है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने दिया है, और जो कि अभी के प्रेजेंट डे मैप से काफ़ी रिजेंबल करता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ नए टर्मिनोलॉजीज़ की। टर्मिनोलॉजीज़ वो जो कि जिनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीनिंग और शब्दों के अर्थ एंटायरली अपोजिट हो गए या बदल गए। जैसा कि आज हम जिन शब्दों को जिन मीनिंग से जानते हैं वो उस टाइम पे वैसे नहीं थे, कुछ अलग भी होते थे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे वर्ड फॉरेनर को लेकर, तो फॉरेनर उस समय पर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो किसी और स्टेट या किसी और रीजन से बिलोंग करता हो, जबकि आज की अगर हम बात करें तो फॉरेनर से हम उस व्यक्ति को समझते हैं जो कि किसी अन्य देश से बिलोंग करता हो। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारे देश हिंदुस्तान की, जिसको आज हम इंडिया के नाम से पुकारते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं, वहीं अगर हम बात करें 13th सेंचुरी में तो मिनाज आई सिराज जो कि एक क्रोनोलिकर था, उन्होंने इसे हिंदुस्तान नाम से कहा था, इसे हिंदुस्तान नाम से उस टाइम पे कहा जाता था। वहीं अगर हम बात करें 14th सेंचुरी के आते आते अमीर खुसरो नाम के पोएट ने इसे नाम दिया था हिंद, और वहीं 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में आते आते अगर हम बात करें
यानी कि बाबर के समय का जो काल था, उन्होंने हिंदुस्तान का अर्थ जोग्राफिकल सिचुएशन जो अगर हम डिस्क्राइब करें तो फोना और कल्चर जो कि इनहेबिटेंट था सब कॉन्टिनेंट्स में, उसको कहा गया था। तो ऐसे इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस हैं तब में और अब में, जो कि हमको जानना ज़रूरी है ताकि हम हिस्ट्री को बेटर तरीके से तब के समझ सकें। अब हम लोग जानने वाले हैं सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को जानने के तरीकों की। हमने किस तरीके से हिस्ट्री को समझा है और किसकी मदद से हमने हिस्ट्री को जाना है। तो यहाँ पे कई सारे, अभी भी अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो चूँकि उस टाइम पे भी हमारी जो हिस्टोरियंस थे वो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और तब के पेंटिंग्स पर ये डिपेंड थे हिस्ट्री राइटिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। तो इंस्क्रिप्शन जो थे वो मतलब होते हैं शिलालेख, यानी कि एनग्रेव या कार्विंग जो कि पत्थरों पर या मेटल्स पर करी गई हो, लेटर्स की या वर्ड्स की, जिससे हमको जानने के लिए मिलता है कि उस टाइम पे किन भाषा का प्रयोग होता था और किस तरीके से स्क्रिप्ट्स उस टाइम पे लिखी जाती थी। सेकंड है कॉइन्स। तो कॉइन्स हमें मदद करते हैं ये जानने में कि उस टाइम पे किस तरीके की सभ्यताएं होती थी, वो लोग किन चीज़ों को पूछते थे, क्योंकि वो जिन चीज़ों को ज़्यादा मानते थे उन्हीं को उन्हें यहाँ पर कॉइन्स पर यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, और जिन भाषा का प्रयोग होता था वो इन कॉइन्स पे अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आर्किटेक्चर भी एक सोर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके का कल्चर रहा होगा हिस्ट्री में। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है और बिल्डिंग्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उन पर एक फ्यूजन आर्ट देखा गया आर्किटेक्चर पर, जो कि इंडिया और मुग़ल काल का एक फ्यूजन था, ब्लेंड था, जो कि हम यहाँ की बिल्डिंग्स पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था उस टाइम के कल्चर को या हिस्ट्री को जानने का। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स या टीचिंग्स जो कि हमारे पूर्वजों ने, सेंट्स ने या सूफ़ी जो लोग थे उन्होंने हमें सिखाई थी। और यहाँ पर हम साथ में ये भी देखेंगे कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में तब के जुडिशियल रिकॉर्ड्स या लेटर्स या क्रॉनिकल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ के अकाउंट्स और टैक्सेस भी हम इनसे पता कर सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से मैनेज करते थे। बाद में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्क्राइब्स के द्वारा कॉपी कर हिस्ट्री को लिखा गया। अगर मैं आपको बात करूँ स्क्राइब की, तो स्क्राइब यहाँ पर उसको कहा जाता है जो इन मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करके और हिस्ट्री लिखने में मदद करते हैं। यहाँ पर मैं एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि जब ये टेक्सचुअल डेटा जब कॉपी होता था तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस के अभाव में ये डेटा हाथ से ही लिखा जाता था। उस समय जब स्क्राइब्स को इन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को पढ़कर कुछ समझ में नहीं आता था या किसी शब्दों को वो समझने में उनको आसानी नहीं होती थी, तो उस समय वो अपने अनुमान से उन शब्दों की जगह अपने अनुमानित शब्दों को लिख दिया करते थे। लेटर ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जनरेट हुई, क्योंकि इसके वजह से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था या जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो आज हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। और हम ये भी देख पाएंगे कि जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग तरीके से हिस्ट्री को लिखा है। तो ये हमको एक डिफरेंट वर्जन्स देखने के लिए मिलते हैं, और इससे हम एकदम सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किसी स्क्राइब की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़कर या उनके आर्कीव्स को पढ़कर कि ये तथ्य ओरिजिनल है या नहीं। यहाँ पर एक ओकेज़न पर ज़ियाउद्दीन बारानी द्वारा लिखा गया एक क्रॉनिकल था जो कि 14th सेंचुरी में लिखा गया था, 1356 CE में, जो कि पहला वर्जन था। और अभी अगर हम देखें तो उनका नेक्स्ट वर्जन था जो फर्स्ट वर्जन
1960 के बाद उनने लिखा था, सॉरी 1356 के बाद उनने 1960s में जो दूसरा वर्जन लिखा था, तो वो जो दोनों वर्जन है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, वो डिफ़र करते हैं। पर अगर अब हम आज लाइब्रेरी में देखने जाए तो उस वर्जन के बारे में हमको कहीं पे भी पता नहीं लगता है, वो अब लॉस्ट हो चुके हैं। तो अब हम ओरिजिनल टेक्स्ट को जानने में सक्षम नहीं हैं। पेंटिंग्स भी हमें हिस्ट्री राइटिंग का एक बहुत अच्छा ज़रिया हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर आप जो पेंटिंग देखेंगे इनको मिनिएचर भी कहा जाता है, और इनमें रियल मॉडल जो थे, जो दरबारों में जिस तरीके के वहाँ पर व्यवस्था होती थी उस पीरियड में, ऐसी की ऐसी पेंटिंग्स को यहाँ पर उकेरा गया है मिनिएचर्स के द्वारा। तो ये एक हिस्ट्री राइटिंग का अच्छा तरीका हुआ करती थी, क्योंकि इनसे हम जान सकते थे कि उस टाइम पे वो लोग किस तरीके से उनका कल्चर हुआ करता था। यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे मिडिवल हिस्ट्री में कि कई सारे इनोवेशंस थे जो हमने विटनेस किए, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ पर्शियन व्हील, जो कि इरिगेशन की टेक्निक में हमको काम आता था, फिर स्पिनिंग व्हील जो वीविंग में काम आता था, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट सिचुएशन, देन सम न्यू क्रॉप्स वर देयर लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की। तो इस समय के पीरियड में कई सारे सोशल ग्रुप्स भी सामने आए, जैसे कि राजपूत, अहोम्स, मराठा, सिख, जाट और कायस्थ। सबके अपने अपने बिलीफ थे, सबके अपने अपने एक ट्रेडिशन थे जिनको वो फॉलो करते थे। पर बेसिकली अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पर तीन जो फेसेस हैं सोशल ग्रुप्स के वो हमको देखने मिलेंगे, जो कि मुख्य हुआ करते थे, जैसे कि हिंदुइज़्म, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। हिंदुइज़्म अगर हम बात करें तो जो कि मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, यानी कि वर्शिप ऑफ डीटीज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, और आइडल वर्शिपिंग में वो लोग बिलीव करते थे। और उस समय हमने कई सारे भक्ति मूवमेंट्स और रिलीजनल इम्पोर्टेंस के मूवमेंट्स भी विटनेस किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो जब हमारे देश में इन्वेजन्स हुए, जैसे कि तर्क्स का, मुगल्स का, अरब्स का, तो इस्लाम धर्म की यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे कि नींव रखी गई थी 1200 सदी में। और ये एक इस्लाम धर्म या हम कहें कि उर्दू भाषा का भी हम लोग प्रचलन इस ड्यूरेशन में देखा गया था। फिर लेटर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ये एक ब्रिटिशर्स के भी आगमन का काल हमारे भारत में था। तो यहाँ पर ये तीन बेसिक मेजर ग्रुप्स थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। और इनके आने के साथ साथ ही हम लोग कई सारे रीजनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो स्टेट्स थे या हमारे जो रीजन्स थे, हमारे कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर विटनेस किए गए। यहाँ तक कि हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस में भी कई चेंजेस हमने यहाँ पर विटनेस किए हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी कि यहाँ जो ये पीरियड था, ये कई सारे सोशल ग्रुप्स जो थे उस टाइम पे हमने देखे। तो ये जो सोशल ग्रुप थे वो जाति और सब कास्ट में बटे हुए थे, जो कि डिपेंड करता था कि वो किस तरीके का ऑक्यूपेशन या किस काम को करते हैं, उनसे ये इनको जातियों में या सब कास्ट में बांटा गया था। हर जाति का अपना एक चीफ्टेन हुआ करता था, जो कि उस कबीले को या विलेज को एडमिनिस्टर करता था, जिन्हें हम चिफ्टेन कहते हैं। और हर जाति के अपने कुछ अपने नियम थे, जिनको जाति के जो लोग थे उन्हें मानना आवश्यक हुआ करता था। Now if we talk about the regional expansion, there was a vast regional expansion जो कि कवर किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और यहाँ पे आप ग्रीन जो देख सकते हैं कि ये जो पूरी तुगलक डायनेस्टी है, जो यहाँ पर मैप पर आपको शो करी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे गियासुद्दीन बालबन की, जिन्होंने अपना जो पूरा एम्पायर है उसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है
कि वेस्ट में अगर हम बात करें, इन गौडा इन द ईस्ट टू गजनी इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट, और इसमें सारे साउथ के द्रविडियंस इन्वॉल्व थे। साथ ही पीपल ऑफ गौडा आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये लोग भी सारे कन्विंस्ड हो गए थे उस रूलर से, और ये वाला जो भी पार्ट था वो भी मुग़ल डायनेस्टी के ही अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 1800 शताब्दी में, यानी कि 18th सेंचुरी में मुग़ल डायनेस्टी का डिक्लाइनिंग पीरियड हमने यहाँ पर नोटिस किया है। अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की, तो इस डिक्लाइन पीरियड के बाद कई सारे जो रीजनल स्टेट्स थी वो ब्रोकन डाउन हुए हैं, उनमें चेंजेस आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम की, तो इस्लाम धर्म में अगर जो हम मेन बात करें तो दो मुख्य ग्रुप्स हुआ करते थे, एक सुन्नी और दूसरा है शिया। सुन्नी वो लोग हुआ करते थे जो कि खलीफा में बिलीव रखते थे, और शिया हम उन्हें कहते थे, शिया वो लोग माने जाते थे कि जो प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ में बिलीव करते थे, जिनका नाम था अली। अगर अब हम सुन्नी की बात करें तो उनने 4 स्कूल ऑफ लॉ यहाँ पर बताए गए हैं, जिनको मज़हब के नाम से जाना जाता है, जिनको मज़हब कहा जाता है, जो है कि हनाफी, हनबली, मलिकी और शफ़ी। जिसमें कि ये हनाफी और शफ़ी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया जाता है। और हनाफी और शफ़ी की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस है इनके प्रेयर करने के तरीक़ों में, और इसी वजह से ये दो डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा माइनर डिफरेंसेस जो थे इनके तरीक़ों में था, द वे दे यूज़ टू डिलीवर द प्रेयर्स। ये सभी इमाम के अंतर्गत आते हैं, और ये 4 डिफरेंट इमाम हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। अब वैसे ही अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो शिया के अंदर में भी ये जो हमको क्लासिफिकेशन बताया गया है, जिसमें कि सैय्यदी बोहरा जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसमें बताए गए हैं। और इसके बाद फाइनली आते हैं ख्वारिज। तो इस तरीके से ये जो इस्लाम था वो भी तीन हिस्सों में कैटेगराइज था, जो कि आज हमने इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का वो फिनिश होता है, जहाँ हमने एक पूरा ओवरव्यू देखा है कि हम इन 1000 ईयर का जो पीरियड है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और हम यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस जो थे वो देखने वाले हैं। So stay tuned for the next video. Soon I will be gonna share the next video of chapter 2. Thank you.